Hello students, welcome to the class again. Okay, so today I am going to discuss electric lines of force, its properties, and we'll draw the some electric lines of force due to some system of charges, and we'll study the torque on the dipole placed in the electric field and the potential energy of the dipole. Okay, so this is the last lecture of the electric field. So I told you earlier that you watch all of 3 my lecture on the electric field continuously, right? Day after the other, right? Or 3 or 4 hours continuously if you want to clear the concept of the electric field. Okay, so today I will start with the electric lines of force or the field line. Okay, so in fact electric lines of force is an hypothetical concept, right? So mainly it is used to represent the configuration or the geometric picture of the electric field associated with a charge or a system of charges or a continuous charge distribution, right? So otherwise it is an hypothetical concept. So I tell you later on that how it is hypothetical, right? Why we say it is hypothetical. So before I proceed forward, so we come to the electric lines of force. Okay, suppose it is a reason, this is some reason in which electric field is existing. Okay, so I place a charge somewhere here, positive or negative. Let us suppose it is a positive charge. If it is an electric field and charge is placed in the electric field, this charge will experience the force. Say this is the force experienced by the charge, that is equal to F is equal to QE. If I release this charge will start moving in the electric field due to this force, and it will move the in the direction in which it will experience the force or the direction in which the electric field is there, right? If it is a positive charge. Okay, so suppose I release this, right? If I release this, say it is moving in this way. Okay, the path adopted by this charge is called the line of force because it is the direction in which the force is experienced by this charge. That's why it is called the lines of force, as it represents the electric field of the charge. That's why they are called the field line. Okay, so अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ, ये अगर लाइन ऑफ फोर्स है, राइट, तो ये इधर को नहीं जाएगा. इट इज नॉट अ रियल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फैक्ट. ओके, सो इफ आई रिलीज दिस, right, it will experience the force in this direction and the direction of the electric field changes, right, but the charge will not change its direction immediately because it has some inertia. So it will overshoot that part and then it try to come back to the in the direction of the electric field. Okay, so when we define the line of force, so there is a technical definition of the line of force that I am going to define. So in place of the charge Q, we take a test charge. Okay, because it must move slowly, it must experience very small charge, right? It will not overshoot to the last distance from the line of force or direction of the electric field. Okay, so how the line of force is defined? It is defined as an electric line of force is the path along which a test charge will tend to move. Why I am saying tend to move, right, in the electric field if it is प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज फ्री टू डू सो. अगर हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं और फ्री छोड़ देते हैं, जिस पाथ के लॉन्ग ये मूव करेगा या करने की कोशिश करेगा, इट विल टेंड टू मूव, राइट, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ फोर्स. टेंड टू मूव क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया ड्यू टू इनर्शिया इट विल ओवरशूट द पाथ. ठीक है, पाथ ओवरशूट कर जाएगा, दोबारा वापस आएगा उसमें. ओके, सो दैट्स व्हाई वी से टेंड्स टू मूव, राइट. So line of force क्या है? It is a path along which a test charge will tend to move, right, when it is free placed in the electric field and it is free to do so. Okay, so if the charge is moving slowly to this direction, in this direction, it means that it is experiencing the force in this direction. Okay, so it is the direction of the electric field also, right. If I draw tangent to this line of force, tangent to this path, and it will give the direction of the electric field at that point, right. So electric line of force or field line may also be defined as it is a path straight or curved in the electric field tangent to which at every point will give the direction of the electric field, right. So if this is a line of force, I suppose this is a line of force and this is a point. If I draw the tangent line at this point, then the direction of this tangent line is the direction of the electric field. This is the direction of electric field at this point.
If I draw at this point and this is the direction of electric field, and at this point electric field की direction ये रहेगी. Okay, so this is the second definition. So second definition क्या है? It is a line straight or curve in the electric field tangent to which at every point will give the direction of the electric field. So this is the field lines or the lines of force. I define again, right? So line of force क्या है? It is the path in the electric field along which a test charge will tend to move if the charge is placed in the electric field and it is free to do so. Okay, second definition क्या है? It is a line straight or curve in the electric field tangent to which at every point will give the direction of the electric field. ओके, सो ये दो डेफिनेशन है. आप दोनों में से किस तरह डिफाइन कर सकते हो, फील्ड लाइन को या लाइंस ऑफ फोर्स को. ओके, इससे पहले कि हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े लाइंस ऑफ फोर्स की, राइट, तो हम लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करते हैं फॉर सम सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है ना, कुछ चार्ज सिस्टम है, उसके जो है लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ करेंगे. So first we will draw the line of force due to a positive point charge. Say suppose this is a positive point charge, and now we draw the line of force. If I place test charge over here, what will happen? It will experience the force away from the charge. It will move radially away. If I place the charge over here, it will move radially away. If I set it free, right? यहाँ प्लेस करूंगा तो उधर आ जाएगा, अगर यहाँ करूंगा तो इधर चले जाएगा, लाइक दिस. सो दीज आर द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. ये पॉइंट चार्ज है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे रहेंगी, राइट. दे आर रेडियली अवे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, दैट इज रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज. ओके, इस केस में जो टेस्ट चार्ज जो है इट विल मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स की तरफ ही जाएगा. ठीक है ना, स्ट्रेट है, राइट, इट विल मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स. अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इफ आई हैव द नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इट इज माइनस क्यू चार्ज, then if I place a test charge over here, so it will get attracted by the charge and it will move toward the charge. So line of force ऐसे बन जाएगी. नेचर स्ट्रेट लाइन ही है, but it is radially inward, it is toward the negative charge. ठीक है, so this is the line of force due to the point charge, right. इसलिए रेडियली बाहर रहेगी, रेडियली इनवर्ड रहेगी. Okay, this is due to the negative charge and it is due to the positive charge. Okay, so next we take the example of dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं. So I take the case of dipole. Say positive charge is here, positive Q, and this is the negative Q charge. This is the line joining the charges. Axis हो गया, right? So if I release a test charge from here, Q नॉट को मैंने यहाँ प्लेस किया, तो this charge will repel the charge, तो वो ऐसे जाएगा रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज. अगर ये नहीं है, it will move radially away like this, right. As this charge is present over here, this test charge is attracted by the negative charge. So what will happen? The charge will move radially away, but it will come back to the negative charge. It will move in this way. It will start from the positive charge and at the negative charge. In the same way here, टेस्ट चार्ज यहाँ से रिपेल होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, राइट. इफ आई रिलीज द चार्ज फ्रॉम दिस साइड, सो इट विल मूव इन दिस वे. So this is the arrow because test charge will start from this and at the negative charge. If I release from there, it will straight move to the negative charge. If I release the test charge Q not from here, it will move radially away, right. If I place the test charge over here, it will move radially inward. Okay, so if I place over here, it will adopt the bigger path and then come back to the negative charge. So path will be like this.
So this is the field line of a dipole, very important, many times it comes in the examination. This is the line of force of the dipole. So one thing you must remember, that two lines of force never intersect. Whenever you draw the line of force, never touch each other. Okay, so while drawing the line of force, you don't cross the line of force from each other, or don't touch the line of force in between. Okay, so line of force cannot cross each other, cannot touch each other, so you make the line of force at some distance, right? तो ये बात ध्यान रखना आपने, जब भी लाइन ऑफ फोर्स शुरू करोगे तो आपको टच नहीं करनी है, दूर दूर रखनी है, ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना कहीं वो टच करेंगी. सो दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द डाइपोल. ओके, सो नाउ वी विल ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द टू पॉजिटिव चार्जेस, राइट? आइडेंटिकल चार्ज, सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उसके कारण फील्ड ड्रॉ करते हैं. So this is a positive charge plus q, and another positive charge plus q is over here, and this is the middle line. Okay, why I have drawn? Because I know that at this point field will cancel each out each other, right? इसकी field उधर को इसके इधर होगी, तो field will be equal and opposite. It will cancel out. Okay, so now draw the line of force from the same concept. जिधर को टेस्ट चार्ज जाएगा, suppose I have released the test charge from here, तो ये जाएगा टेस्ट चार्ज इधर की तरफ. In this way it will move readily away, right? But what is happening? This charge is repelling the test charge. It will say that, right, I will not allow you to come to this side, right? So this charge will repel the charge. What will happen? So it will start from this side and it will be repelled by the other charge and will move away from each other, and it will move like this. Touch नहीं करना है यहाँ, ऐसे ही जाना है. In the same way, if I release a charge from this point, so this is the line of force. In the same way here, if I release the charge from this side, it will move like this. वापस नहीं लेके आना है, साथ साथ में चलती रहेगी. डोंट टर्न बैक, ऐसे नहीं करना है. यू कैन लीव हियर बट डोंट टर्न. यहाँ से ऐसे जाएगा एंड इट विल लाइक दिस, इट विल रिपेल बाय दिस, लाइक दिस. Here again it will move. If I place a tester over here, it will readily move readily away from the charge, and if I place the charge here, it will move like this. You can draw the more lines, but you must keep in mind that the two line of force never touch each other. Okay, so you can draw more line over here, but in this case the number of line of force on the both sides should be same. जितनी यहाँ draw करोगे उतनी यहाँ ड्रॉगे. So this is the picture of the line of force due to the two positive charges. Okay, so this also comes in the examination many times. Right, center में कोई लाइन नहीं है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, so line of force will be like this. Okay, next line of force due to the two charges, similar charges, one has the more magnitude as compared to the other. Suppose, and this is a charge, positive charge है, its magnitude is more, and there is a charge, it has lesser magnitude, right? And the strength of this charge will be more and this charge will be less, so the neutral point will be away from the charge. इससे ज़्यादा दूर होगा, इसके नज़दीक रहेगा.
राइट, दूर जाओगे फील्ड कम होगी, इसकी फील्ड जो नजदीक जाओगे बढ़ेगी, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है फील्ड का वो दैट इज टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज। ओके, सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ where charge electric field get neutralized, and this is the equatorial line at that point, not equatorial, vertical line. Okay, so if I release the test charge from this side, so it will move like this. Okay, so you draw more number of lines of force due to this, because strength is more, it will emit more lines. वापस नहीं आना है, ऐसे रहेगा, वापस नहीं आना है, ठीक है ना। सो दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्ज ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, एंड फ्रॉम हियर द लाइन ऑफ फोर्स विल बी लेसर इन नंबर. सो ड्रॉ करते करते वापस नहीं ले आना, इसको गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना. सो इट मूव लाइक दिस. सो दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द टू पॉजिटिव चार्जेस, वन ऑफ देम हैज मैग्नीट्यूड मोर देन द अदर. ओके, नेक्स्ट फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड अ फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, लार्ज शीट ऑफ चार्ज. ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस द फील्ड इन अ रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. एक सर्टेन रीजन है जहां मैग्नीट्यूड जो फील्ड की स्ट्रेंथ और फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हर एक पॉइंट में सेम है, देन इन दैट रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड बी यूनिफॉर्म. ओके, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो शीट ऑफ चार्ज आल्सो जनरेट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों को देख लेते हैं हम. वी टेक द एग्जांपल ऑफ शीट ऑफ चार्ज. इट इज अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज, लेट इट बी पॉजिटिव चार्ज. So line of force will be like this, equally spaced parallel lines. So this is the field line due to the sheet of charge. There will be equally spaced. Space बराबर बराबर है and जो पैरेलल लाइन बनेगी डायरेक्शन मतलब सेम ही रहेगी. सो इस शीट के इस साइड में दो डायरेक्शन होनी है, शीट की दूसरी साइड में डायरेक्शन will get reversed. If you have to draw the uniform electric field, you draw simply this portion only, right? If you have to draw the field due to a sheet of charge, large sheet of charge, you have to draw the on both sides, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी. इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन बनाएगी बिकॉज जो शीट ऑफ चार्ज है, लार्ज शीट ऑफ चार्ज है, इट जनरेट्स द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड whose direction is same and magnitude is same. पर एक ध्यान रखना कि शीट के इस साइड में इधर डायरेक्शन है, इस शीट के दूसरी साइड में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन होगी. Okay, so this is the field line due to some system of charges. Now study some properties of the lines of force which are very important, right? Many time it comes in the examination, 1 or 2 marks का जो क्वेश्चन इसमें से आ जाता है. Okay, so first property is that the lines of force start from the positive charge and end at the negative charge. ठीक है, पॉजिटिव शुरू होंगी और नेगेटिव से नेगेटिव में एंड होंगी. जैसे अभी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इट विल रेडियली अवे, राइट. नेगेटिव चार्ज इट कम्स इनवर्ड. ओके, सो दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज. जैसे डाइपोल की फील्ड भी ड्रॉ की हमने, लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव शुरू होके एंड नेगेटिव में एंड होगी. So the line of force start from the positive charge and end at the negative charge, and they are also continuous.
कॉन्टिन्यूस का मतलब है देयर इज नो सडन ब्रेक, ब्रेक्स नहीं है, एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से कम नहीं हो जाएगी, डायरेक्शन एकदम से चेंज नहीं होगी. यूनिफॉर्मली इट विल डिक्रीज, यूनिफॉर्मली इट विल इंक्रीज, एंड यूनिफॉर्मली स्लोली इट्स डायरेक्शन विल चेंज. Okay, so it is a continuous curve, right, but not doesn't form loop. लूप नहीं फॉर्म होगी, यानी कि क्लोज लूप नहीं फॉर्म होगी. लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. ठीक है ना. सो लेट अस सपोज इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप. मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, डाइपोल का केस लेते हैं, राइट. इट हैज फॉर्म्ड अ क्लोज लूप लाइक दिस. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट अ पॉजिटिव चार्ज इज फर्स्ट रिपेलिंग द टेस्ट चार्ज. ठीक है. एंड इट इज देन अट्रैक्टिंग द टेस्ट चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, दैट्स ओके, राइट. एंड इफ इट इज क्लोज फॉर्मिंग द क्लोज लूप, इट्स मीन दैट दिस चार्ज इज अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सो व्हिच इज नॉट पॉसिबल. सो सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई चार्ज लाइन ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूअस रहेंगी पर क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं, अनलाइक द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज लूप फॉर्म करेंगी, पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं. सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड है कि टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एवरी पॉइंट क्या देती है? गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एवरी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. मान लो ये आपकी लाइन ऑफ फोर्स है, अगर इस जगह में आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे चार्ज ऐसे मूव करके गया, राइट. यहाँ आपने टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर यहाँ ड्रॉ करोगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एवरी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट. अभी बता के आया हूं कि लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है तो आपने टच भी नहीं करनी है और इंटरसेक्ट भी नहीं करनी है. टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, राइट. अब क्यों नहीं करेंगी? मान लो ये दो लाइन ऑफ फोर्स है फील्ड में, जो इंटरसेक्ट करेगी इस जगह में. ठीक है. फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स वाज दिस एंड सेकंड इज दिस, जो यहाँ दोनों आपस में कट की इंटरसेक्ट की है. ओके. सो वी नो दैट टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स है, इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करता हूं मैं इसको. सो दिस इज द टेंजेंट टू द फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ फोर्स. I draw the tangent at this point. Okay, so it's mean that at the point of intersection there are two direction of electric field which is found by drawing the two tangent on the two different lines. दोनों लाइन के ऊपर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, दो टेंजेंट बन गए, राइट. देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, it is not possible. Unique electric field at a point is uniquely defined in magnitude and direction. एक पॉइंट में उसका एक ही डायरेक्शन होगी और एक ही मैग्नीट्यूड होगा, राइट. तो बहुत सारी फील्ड हो, रिजल्टेंट के बराबर ही होगा. ठीक है. बट इट हैव ओनली वन डायरेक्शन एंड वन मैग्नीट्यूड. So it is not possible that at a given point there are two directions of electric field. Okay, so it's mean that two lines of force never intersect. So ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि दो लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, लाइन ऑफ फोर्स जो है आर इन लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन. ठीक है ना. लॉन्गिट्यूड मतलब लेंथ वाइज, राइट. लेंथ वाइज इन टेंशन यानी कि लेंथ वाइज वो खींची हुई रहती है, जस्ट लाइक इफ यू स्ट्रेच अ वायर और रबड़, इस तरह से खींची रहती हैं. ठीक है ना. दे आर इन टेंशन. ओके. सो ये क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. मीन टू से, मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू, ये नेगेटिव चार्ज है क्यू, राइट. आई हैव रिलीज द टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस एंड इट हैज मूव लाइक दिस. ओके. सो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ, आई इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, राइट. ये ज्यादा चार्ज हो गया तो ये टेस्ट चार्ज जो इधर से नहीं जाएगा, इट विल मूव अलोंग अ शॉर्टर पाथ, राइट. शॉर्ट क्यों हो गया? बिकॉज अट्रैक्शन बढ़ गई है. सो देयर इज अ लेंथ वाइज टेंशन. ओके. सो लेंथ वाइज टेंशन रहेगी अलोंग द लाइन. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है
Lines of force are under lateral pressure. Lateral pressure means sideways. Line of force try to move या push the line of force each other away from each other. ठीक है, push करेंगे line of force. Okay, so it is due to the property that unlike charges, like charges repel each other. ठीक है ना, it is due to the property that like charges जो है वो repel करती हैं. ये है attraction का unlike charges, ये है it shows the repulsion. कैसे? I take the same example. This is a positive charge Q and Q. Right, so I have released a test charge from here and test charge moves like this. Okay, so if I increase this charge magnitude, ये test ऐसा नहीं जाएगा, ये इधर चले जाएगा, it will move from away. So line of force जो है वो repel कर रही हैं, right? So lines of force जो है they exert lateral pressure, right? They repel each other, right? They try to push the lines away from each other. Okay, so this is due to the property that like charges जो है वो repel करते हैं. Okay, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है. तो ये प्रॉपर्टी आती है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये आती है प्रॉपर्टी अंदर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी जो लाइंस ऑफ फोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ कंडक्टर. चार्ज कंडक्टर हो या कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक में प्लेस कर रहे हैं, राइट? लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एंड और स्टार्ट कंडक्टर से हमेशा नॉर्मली होंगी. ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, नॉर्मली होंगी. मीन टू से इफ दिस इज अ कंडक्टर, राइट, लाइन ऑफ फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट लाइक दिस. राइट, they will be normal to the surface at every point. एंड भी ऐसे होनी है, पॉजिटिव चार्ज है तो स्टार्ट होंगी, नेगेटिव होगा तो एंड होंगी. ठीक है ना, सो एंड एंड स्टार्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस. ओके, अब ये क्यों है ऐसा? लेट अस सपोज कि लाइन ऑफ फोर्स जो है वो राइट एंगल में नहीं थी, राइट? दे आर एट सम एंगल विद द सरफेस. ओके, सो इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द टेंजेंट टू दैट. इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, E cos theta and E sin theta. Right? So what will happen? Due to this component, say this is the electron in the conductor, तो इस कंपोनेंट के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगी इस साइड में. ओके, सो इलेक्ट्रॉन विल गेट पुश्ड फ्रॉम दैट, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ, इधर चला गया, इधर चला गया, यानी कि जो कंडक्टर में जो है मूवमेंट ऑफ द चार्जेस विल स्टार्ट, राइट, एंड करंट विल डेवलप इन द कंडक्टर. मूवमेंट चार्जेस शुरू हो जाएंगी और कंडक्टर में करंट आ जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा. ओके, चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकली प्लेस किया है, बट इट इज नेवर ऑब्जर्व्ड. ऐसा कभी होता नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट? तो कभी भी चार्ज जो है मूवमेंट शुरू नहीं होती है इलेक्ट्रिकली प्लेस करने से. वी हैव टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस बाय सिंपली प्लेसिंग द इलेक्ट्रिक. देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सब चार्ज एंड नो फॉर्मेशन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर. सो सच थिंग इज नॉट देयर एट ऑल. ओके, इट्स मीन दैट कि ये जो फोर्स लग रही है ये नहीं होनी चाहिए. ये तभी पॉसिबल है जब ये ना हो. सो E cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसका मतलब है cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0. इट्स मीन दैट थीटा शुड बी 90 डिग्री. सो ये इधर फील्ड नहीं होनी चाहिए, शुड बी एट राइट एंगल टू द कंडक्टर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज राइट एंगल टू कंडक्टर. इट विल स्टार्ट एंड एंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर राइट एंगल टू इट. ठीक है ना, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना. और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो है, नेवर क्रॉस द कंडक्टर. कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेंगी, इंसुलेटर में से पास हो जाएंगी, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से पास हो जाएंगी, राइट? कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेंगी, राइट? इफ यू हैव प्लेस द कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट? अगर लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आई हैं, यहाँ एंड हो जाएंगी, यहाँ से शुरू हो जाएंगी, बट इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी. देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वेदर इट इज अ चार्ज और इट इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होती है. लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस द कंडक्टर एंड बट दे कैन पास थ्रू द इंसुलेटर. इंसुलेटर में से पास हो जाएंगी, ठीक है ना, कंडक्टर में से पास नहीं होंगी, क्रॉस नहीं होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स.
लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी मतलब उसकी क्लोजनेस. इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज, डेंसिटी इज मोर, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स इज लेस, राइट, देन द फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. ठीक है ना, दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गर फील्ड. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, it generates the lines of force in this way. यहाँ थोड़ा टच हो गया बट you should not touch that, right? तो ऐसे होना चाहिए. Okay, so if I take this region, यहाँ लाइन ऑफ फोर्स नजदीक है, अगर मैं यहाँ चले जाऊँ अपने रीजन में, लाइन ऑफ फोर्स जो है वो दूर है. ठीक है ना, सेम रीजन में यहाँ लाइन ऑफ फोर्स कम है, यहाँ लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा है. Here are closer, so strength of the electric field is more over here as compared to this point. Okay, so closeness of the lines of force will give the strength of the electric field. ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्लोज होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी. फ्रॉम 1 कूलम चार्ज, अगर Q is equal to 1 कूलम है तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी 1 by epsilon number of lines of force will generate from 1 coulomb charge in vacuum. ठीक है, वैक्यूम एरिया में 1 कूलम चार्ज से इतनी जो है लाइन ऑफ फोर्स शुरू होगी. ये आप स्टडी करोगे, गॉसेस थ्योरम करनी है हमने नेक्स्ट, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, राइट, उसमें इसको प्रूव कर सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स जो है 1 कूलम से इतनी स्टार्ट होगी. 1 by epsilon number of line of force start from the 1 coulomb charge. Okay, so next जो है it is not reality. ठीक है ना, इट इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. इट इज अ सिंपली कंसेप्ट टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम इसको. ठीक है ना, रियलिटी में नहीं होती है ये. ओके, अब ऐसा क्यों कहते हैं? रीजन थिंक दैट अगर मान लो ये डाइपोल केस ले लेते हैं, से दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द डाइपोल. ड्रॉ इट बिट प्रॉपर्ली. ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव, so this is the line of force to the dipole. so इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही लाइंस है along with जो चार्ज मूव करेगा. ठीक है ना, फील्ड यही है, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में. ठीक है ना, राइट. इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज फील्ड इज एग्जिस्टिंग एट एवरी पॉइंट, राइट. फील्ड इज एग्जिस्टिंग एट एवरी पॉइंट इन दिस रीजन. हर एक पॉइंट में फील्ड है, ये नहीं कि इसके along ही फील्ड है, राइट. सो देयर इज नो रीजन इन दिस बोर्ड और इन दिस प्लेस, right, या नो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. एट एवरी पॉइंट देयर इज अ फील्ड, राइट. फील्ड डजंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स. इट इज अ पिक्चर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि नेचर ऑफ द फील्ड विल बी लाइक दिस, राइट. बट द फील्ड इज नॉट अलोंग द लाइन, द फील्ड इज एट एवरी पॉइंट इन दिस रीजन. ओके, सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. ठीक है ना, तो इमेजिनरी कंसेप्ट है, राइट. सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन या उसकी जो टाइप ऑफ फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. रियलिटी में लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, राइट. एवरीवेयर देयर इज अ फील्ड. ओके, सो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज द फील्ड whose magnitude and direction is same in that given region. ये रीजन है जहाँ हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, so if we have to represent the uniform electric field, it is represented by equally spaced parallel lines. Equally spaced parallel lines. ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी और स्पेस आपस में बराबर होगी. सो इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन जो है इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, ये बात अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सोर्स क्या है? शीट ऑफ चार्ज. मैंने पहले बताया शीट ऑफ चार्ज जनरेट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अदरवाइज जो भी हमने फील्ड ड्रॉ की पहले लाइन ऑफ फोर्स, राइट, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सभी नॉन यूनिफॉर्म है, राइट, कांस्टेंट नहीं है. आइदर द फील्ड इज वेरिंग इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन. और मैंने आपको बताया था कि जो सिलिंड्रिकल सिमेट्री है डाइपोल की फील्ड यहाँ से पता लगती है, बिकॉज अगर ये पॉइंट सारे ड्रॉ करूँ in this region plane perpendicular to this, right, so there is a
ये रीजन बनेगा जहां फील्ड हर एक पॉइंट में बराबर है। इन द सेम वे हियर द फील्ड विल बी सेम, हियर दिस फील्ड विल बी सेम, सो इट हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। इन पॉइंट में हर एक में फील्ड जो है वो सेम होनी है, यहाँ भी सेम रहेगी, सो इट हैज अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सो लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है ना। सो पॉइंट चार्ज की जो है स्फेरिकल है, ये इस केस की जो है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइंस ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है। Okay students, so last topic of this chapter is the torque on the dipole placed in the uniform electric field and the potential energy produced by the dipole in the electric field. So वो निकालना हमने। Now suppose we have an electric dipole having the poles 10 plus minus q, right, and dipole length AB is equal to 2L. It is placed in the uniform electric field which is applied in the direct right hand side direction. Okay, so this is the positive charge and this is negative charge of the dipole. The positive charge will experience the force in the direction of the electric field which is given by F is equal to QE. On the other hand, negative charge will experience the force in direction opposite to electric field which is given by minus QE. Okay, so as the forces are of equal magnitude and directed opposite, it means that a couple is acting on the dipole. तो डाइपोल में कपल एक्ट कर रहा है। कपल यू नो यू हैव स्टडीड इन द +1 क्लास। कपल इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो इन डिफरेंट प्लेसेस में लाइन ऑफ एक्शन अलग है, दो फोर्स लग रही हैं, तो इट इज फॉर्मिंग अ कपल, जिसके कारण जो टॉर्क लगेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ द कपल, राइट। सो द मोमेंट ऑफ कपल इज द टॉर्क ऑन द डाइपोल। सो उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। यू नो दैट द टॉर्क of the couple or the moment of the couple is equal to the magnitude of the force multiplied by the perpendicular distance. Okay, so we need perpendicular distance between the forces. तो अगर फोर्स से इस साइड में लग रही है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, अगर उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, राइट, तो यहाँ से perpendicular ड्रॉ करेंगे, AC perpendicular to the BC, then AC will be the perpendicular distance between the line of action of the forces. Okay, सो ये जो टॉर्क लग रही है या मोमेंट ऑफ द कपल है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रोटेट करके इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। ओके, सो अगर एट एनी इंस्टेंट थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, we will find the torque on the dipole, the moment of the couple at this position. Okay, so the force acting on the dipole in magnitude is equal to F is equal to Q into E. So torque or the moment of the couple or torque, tau will be equal to force multiplied by the perpendicular distance. So from here we will find the perpendicular distance, right, from this right angle triangle ABC, sin theta will be equal to AC upon AB. AC is D perpendicular, AB is the length of the dipole, and D perpendicular will be equal to 2L sin theta. So इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू भी, फोर्स इज F into F equal to Q into E, it is equal to 2L sin theta. So इन दोनों को जो कंबाइन कर लेते हैं, 2QL into E sin theta. Now it is the dipole moment, magnitude of dipole moment of the dipole, and it will be equal to PE into sin theta. So this is the value of the torque या moment of the couple on the dipole in the scalar form. Now the torque is a vector quantity and the tensor of the second rank. Okay, axial vector है, dipole moment is a vector quantity, electric field vector quantity, and आपस में relation कौन सा है, sin theta का. So it means that torque is related with P and E through the cross product. Okay, now question arises कि should we write tau is equal to P cross E, or we write tau is equal to E cross P, and it will be judged from the rotation of the dipole. You know that this force is acting toward the right hand side, this is to the left hand side, and this couple will tend to rotate the dipole toward the clockwise direction. ठीक है, इधर को रोटेट करने की कोशिश करेगी। सो जिधर को रोटेशन है, हमने डायरेक्शन निकालने के लिए या फॉर्मूला निकालने के लिए we have to turn the finger of our right hand in the direction of the rotation, right? So rotation is in clockwise direction. We make the right hand finger of the right hand to rotate about the direction of the rotation, and thumb is in downward direction. So the torque on the dipole is given by P cross E.
right? Because we have to turn the finger from P to E toward the direction rotation. ओके, सो ई क्रॉस ई करेंगे तो इधर को रोटेशन होनी चाहिए, पर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है. सो द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय P क्रॉस E, नॉट द E क्रॉस P. ये रिलेशन नहीं है, ये वाला रिलेशन आएगा ऊपर वाला. सो इन वेक्टर फॉर्म द टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E. So this is the formula of the torque on the dipole. Now we'll study some special cases. So अभी मैंने बताया कि ये जो टॉर्क है इसका क्या इफेक्ट होगा. इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस तरह से रोटेट करना है कि जो P और E सेम डायरेक्शन में हो जाए, राइट. तो क्या होगा उस वक्त जो P और E सेम डायरेक्शन में होंगे, जब when P and E are in same direction, as in this case the torque on the dipole becomes zero as well as the force on the dipole becomes zero, and it is the case of the equilibrium, right. So equilibrium में आ जाएगा. ओके, सो तो डाइपोल का जो टॉर्क है उसका जो पर्पस यही है, यहाँ एक्शन यही है कि इसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है, राइट. सो दैट द डाइपोल लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. Also, one thing more is there, as two equal and opposite charge forces are acting on the dipole, the net force on the dipole will be zero. Okay, so torque may or may not be zero, but net force is always zero when the dipole is placed in the electric field. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया था एग्जाम में, ठीक है. सो देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द डाइपोल. डाइपोल का ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, सिर्फ रोटेशन ही होनी है. ओके, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, राइट, फिर तो फोर्सेस तो भी अलग अलग हो जाएंगी, तो देयर विल बी रोटेशनल मोशन एंड देयर विल बी द ट्रांसलेशन मोशन, दोनों मोशन पॉसिबल है, ठीक है. पर जब आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो सिर्फ जो है रोटेशन मोशन पॉसिबल हो सकता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा पॉसिबल, बिकॉज जो नेट फोर्स जो है वो ऑलवेज जीरो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑन द डाइपोल. ओके, नाउ द फर्स्ट स्पेशल केस. If theta is equal to 0 degree, it means that dipole and electric field is in the same direction, right. So ये situation है, माइनस चार्ज, दिस इज प्लस चार्ज, एंड दिस इज द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड में है. तो इस केस में क्या होगा, साइन 0 डिग्री इज 0, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन. टॉर्क विल बी इक्वल टू 0, साइन 0 इज 0. ओके, सो इन दिस सिचुएशन नेट फोर्स भी 0 है, डाइपोल के ऊपर नेट टॉर्क भी 0 है. सो इट इज द केस ऑफ द इक्विलिब्रियम, राइट. So the dipole will be in equilibrium. There are two kind of the equilibrium. There are rather three kind of equilibrium are there, right. First जो है stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. Okay, so I tell you this is the case of stable equilibrium. Okay, so मैं आपको बताऊंगा क्यों है stable. एक और condition इसमें stability के लिए है, right. So this is the case of the stable equilibrium. दूसरा केस लेते हैं जब theta is equal to 90 degree है. So P is perpendicular to electric field. ओके, मीन टू से डाइपोल ऐसे बढ़ा हुआ है, सो नेगेटिव चार्ज या प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. ओके, उस केस में होगा साइन 90 कितना बन जाएगा, साइन 90 इज 1 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन. ओके, अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो टाउ विल बी इक्वल टू पी इंटू ई बन जाएगा एंड इट इज टाउ मैक्सिमम. So dipole will experience the maximum torque when it is aligned and in direction perpendicular to the electric field. Electric field के right angle में है तो torque की वैल्यू उसके ऊपर सबसे ज्यादा होगी. Now the third case. If theta is equal to 180 degree, dipole moment and electric field are aligned in opposite direction. Mean to say this is positive charge and this is negative charge. Dipole moment is in direction and electric field जो है वो इधर को है. So in this case also sin 180 degree is 0, torque will be equal to 0. तो force तो already 0 है. So in this case torque on the dipole will be 0, also force is 0 and it is also the case of the equilibrium. ठीक है ना? But this is the case of unstable equilibrium. ठीक है? So I tell you why it is. तो if I displace this dipole right from this equilibration, ये equilibrium है जो ये केस है, मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ थोड़ा सा like this. ओके, सो डाइपोल मोमेंट ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो उससे क्या होगा, फोर्स लगेगी इसको इस तरफ, इसको लगेगी ऐसे. तो व्हाट विल हैपन, ये जो डाइपोल है इट विल टर्न जो है टू द अदर साइड. तो जब आपने इसको डिस्प्लेस किया इस तरह से,
तो उसके ऊपर टॉर्क लगनी शुरू होगी, दैट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना। सो हमने डिफ्लेक्ट कैसे किया उसको, तो टॉर्क जो है वो जिधर को आपने डिफ्लेक्ट किया उधर को टॉर्क लगी, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, द डाइपोल टर्न टू द अदर साइड, दूसरे टर्न हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा, टर्न होके ये पोजीशन में आ जाएगा, ये वाली पोजीशन में, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इसको इस पोजीशन से डिस्टर्ब नहीं करोगे, अगर आप डिस्टर्ब करते हो इस पोजीशन से उसको, ठीक है ना, तो डाइपोल जो है दोबारा इस पोजीशन में नहीं आएगा, इट विल टर्न टू द अदर साइड, ओके। दैट व्हाई इट इज द पोजीशन ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ दिस इज द केस ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ इस तरह से थोड़ा सा डाइपोल को, राइट, तो फोर्स किधर लगेगी इसको, एक इधर, तो एक लगेगी इधर। I have displaced the dipole in this direction, तो ये टॉर्क किधर लग रहा है उसका, डाइपोल का अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। सो दिस इज द जो टॉर्क एक्सपीरियंस किया डाइपोल ने, इट इज अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्ट इधर किया था उसकी अपोजिट टॉर्क लग रही है, तो क्या होगा, सो डाइपोल विल कम बैक टू द सेम पोजीशन अगेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आल्सो इन दिस केस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी जो है डाइपोल की मिनिमम होगी एंड नेगेटिव होगी, राइट। इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एंड पॉजिटिव, राइट। सो पॉजिटिव एनर्जी रिप्रेजेंट्स द अनस्टेबिलिटी, ठीक है, और जितनी नेगेटिव कम होगी और जितनी नेगेटिव होगी दैट इज द मोर स्टेबिलिटी। सो दिस द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, राइट, बट इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, ओके। सो इट इज द पोजीशन ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। सो नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हमने, तो डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट करनी है हमने, लेट अस सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ द डाइपोल एट एनी इंस्टेंट, द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। मान लो डाइपोल को डिस्प्लेस किया है बाय एंगल स्मॉल d थीटा, सो इट इज डिस्प्लेस्ड by angle small d theta. So for that some work is to be done against the torque, either the work is done by the torque or the work is done against the torque, ठीक है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। So small amount of work done to rotate the dipole by small angle d theta is equal to tau d theta, dw will be equal to PE sin theta d theta। अगर इस डाइपोल को रोटेट किया हमने from angle theta 1 to any other angle theta 2, तो नेट वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन dw फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 to थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, दैट इज PE sin थीटा d थीटा। सो P एंड E आर कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो थीटा 1 to थीटा 2 ये बन जाएगा sin थीटा d थीटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज माइनस cos थीटा, सो इट विल बी इक्वल टू PE माइनस cos थीटा थीटा 1 to थीटा 2। सो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सो द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 विल बी इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सो अगर डाइपोल को रोटेट करना है फ्रॉम एंगल थीटा 1 to थीटा 2, तो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। सो दिस द वर्क डन। तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम द परपेंडिकुलर पोजीशन या फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन टू एनी अदर पोजीशन, ठीक है। तो क्या करना हमने, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने डाइपोल को ऐसे रखा पहले परपेंडिकुलर पोजीशन से, ठीक है, किसी और पोजीशन निकालना है, इधर को या इधर को। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, राइट, एंड वी हैव टू रोटेट द डाइपोल एट एंड सम एंगल, ओके। सो हमें इसको परपेंडिकुलर पोजीशन से किसी और पोजीशन में रोटेट करना है, द वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द डाइपोल। सो व्हाट हैव टू डू, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, थीटा 1 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, and we have to rotate the dipole in some other position, that is equal to theta 2 is equal to theta, ठीक है। सो 90 डिग्री से किसी और पोजीशन में लेके जाके जितना काम करना पड़ेगा, राइट, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। सो पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन विल बी इक्वल टू, वी हैव टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी अदर,
ठीक है, एनी अदर हो गया माइनस cos 90। cos 90 जो है वो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी माइनस पी इंटू ई cos थीटा, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, सो इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज पी डॉट ई। So this is the formula for the potential energy of the dipole. Okay, so ये है potential energy at dipole when it is placed in the electric field at angle theta with the electric field, and dipole is making या dipole moment is making angle theta with the electric field. So ये formula हमारे पास potential energy का है. Okay, now we will study the special cases. I define the potential energy again. The potential energy जो है of the dipole is the work done to rotate the dipole from its zero potential energy, zero potential energy कौन सी है 90 डिग्री वाली, to any other position, ठीक है ना, थीटा 1 is equal to 90 डिग्री to थीटा 2 is equal to थीटा जनरल, ठीक है, so that work done will be equal to the potential energy. So वो हमने क्या किया, थीटा 2 equal to थीटा and थीटा 1 should be equal to 90 डिग्री, तो वो potential energy का फार्मूला आ गया हमारे पास. Okay, so in this way we will find the potential energy of the dipole. So ये क्या एक्सप्रेशन फिर है, so it is the work done to rotate the dipole from theta 1 to theta 2 and it will give the change in the potential energy. It gives the change in the potential energy. So initial potential, final potential energy minus initial potential energy. So ये जो work done है, it is the change in the potential energy. और ये जो work done निकाला है, it is the potential energy of the dipole. So दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना. So distinguishable है दोनों, ध्यान रखना है कि ये change in potential energy आएगा, ये potential energy का फार्मूला आएगा. Okay. अब हम स्टडी करते हैं इसकी स्पेशल केस. So first theta is equal to 0 degree. Let theta is 0 degree. Mean to say P and E are in the same direction. And cos 0 is 1. Okay. So U will be equal to minus PE. It is negative as well as it is minimum. Right. Also we know that in this case the torque on the dipole is 0 and the force on the dipole is 0. So this is the case when torque is 0, force is 0, which is equilibrium, and potential energy is minimum. So it is the case of the stable equilibrium. तो ये कौन सा आ गया, stable equilibrium, ठीक है. दूसरा केस है theta is equal to 90 डिग्री and cos 90 is 0. So potential energy is 0. So at right angle to the electric field, अगर डाइपोल जो है वो राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस वक्त जो है पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की 0 होगी. नाउ थर्ड केस, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोथ आर अलाइंड अपोजिटली एज आई डिस्कस अर्लियर, एंड नाउ cos 180 इज -1. अगर यहाँ पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी, माइनस PE इंटू -1. इट इज PE, इट इज पॉजिटिव and maximum. It is a positive and maximum. So in this case potential energy of dipole is positive as well as it has the maximum value. Also we know that in this case also net force and net torque on the dipole is 0. It is a position of the, it is a state condition of the equilibrium, right? But the potential energy is positive and maximum. So this is the condition of the unstable equilibrium. Okay, so ये stable है, ये है unstable equilibrium. The case of the unstable equilibrium. Okay, sometime question आ जाता होता है कि find the work done to rotate the dipole from its stable position to the unstable. ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं. इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, वैसे भी कई बार जो है इन एडिशन विद स्पेशल केसेस क्वेश्चन आ जाता है इसमें. वर्क डन टू रोटेट डाइपोल from stable equilibrium position, ये equilibrium का सिंबल है, position to unstable equilibrium position, ठीक है. So work done will be equal to the final potential energy minus initial. इस केस में कंसेप्ट क्या होगा, work done will be equal to the final potential energy minus initial. So final potential energy कितनी है, जो कि unstable में है, राइट. अनस्टेबल कितनी हो जाएगी, PE माइनस स्टेबल में कितनी है, माइनस PE. अभी मैंने आपको बताया दैट इज PE प्लस PE. सो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू 2PE.
So this is the work done to rotate the dipole from its stable equilibrium position to the unstable position of equilibrium, or from the one equilibrium position to the other equilibrium position. ओके, सो प्लस आ गया तो उसका आपने उसको स्टेबल टू अनस्टेबल घुमाया है. अगर नेगेटिव आ जाता है तो माइनस पी आएगा तो इट विल बी अनस्टेबल टू द स्टेबल, राइट. सो ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसमें, बट वर्क डन जो है वो 2PE के बराबर ही आना है. ओके, सो दैट फिनिशेज योर चैप्टर. जो यहाँ आपका जो डेरिवेशन वगैरह जो ओवर हो जाती हैं. ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट. दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, so I told you earlier that so if you want to have the clear concept of the electric field and the matter inside that, you have to watch the 3 lecture continuously. 3 lecture मैंने upload किए, this I am going to upload, right? So you watch 3 lecture continuously, right, to get the clear concept of the electric field. Okay, so that's all for today, and in next lecture we will meet with the Gauss law and its applications. Thank you, students.